Okay, so we have a class on research metrics today. Before we can proceed with research metrics, I would just like to ask what is the basic intention of joining a PhD program? Anyone of you could begin? I can see Vibha, Isha, Pragati, Ashwarya, Sir, Madhvendra. for the academic enhancement, Okay, as well and as uh-huh. as well as to develop some research orientation so that we can publish some good research paper in index journal. Okay. How many of you have actually taught before joining a PhD program or are currently teaching? You can type in the chat boxes as well, and it will be a completely interactive session. Okay, so Madhvendra is currently teaching, maybe. Who else? Just one? Sir, earlier I was teaching, but right now, Okay. after joining the Jagesha is program, there. I just left. Okay. Jagesha is also teaching. Just two. Okay. Uh, Coming on to the nuances of a PhD program, we need to also understand that for getting a PhD done right, we also need to publish some good quality research papers, isn't it? That is one thing that keeps everyone preoccupied, how to publish good quality papers. Okay, has anyone published any paper right now? Forget the quality part. I'm just asking whether anyone has a publication in any of the peer reviewed journals. Madhvendra has. Okay, who else? Pragati, Jagesha, very good. Okay, Jagesha, can Yes, you sir. hear me right? Yes, sir. Okay, Good so evening. Jagesha, I just wanted to know where have you published your paper? So few of the seminars and e-publication of that Okay, UGC listed e-publication. okay, UGC listed. That's good. Okay, Madhvendra has mentioned that he has published his paper in Springer. Okay, and who else? Vibha, Isha, Pragati. So it is going to be a two-way interactive session. It is not going to be just me who will be talking about what do we need to get it No, sir, right I so that didn't we can. publish any paper, sir. सर Okay, मैंने भी अभी तक कोई पेपर पब्लिश नहीं किया है। okay, ओके, कोई बात नहीं। पेपर पब्लिश नहीं किया है क्योंकि अभी रिसर्च ओरिएंटेशन बन रहा है एंड धीरे-धीरे वंस वी हैव द रिसर्च ओरिएंटेशन वी विल बी इन अ पोजीशन to publish very good quality papers. And whether it is research scholars, whether it is the faculties, one thing which is a hot cake is how to get your paper published in a good quality journal, right? When it comes to India, we and when it comes to social sciences, क्योंकि सब management के ही हिस्सा है, तो somewhere down the line, when we talk about management, we start talking about UGC care. Before UGC care, we had UGC listed, and now the cult is of Scopus, and then it is ABDC as well, and then we have certain publications in SCI as well. So if you could see that the trend is changing, and over a period of time, by the time you get into your third year of your PhD program or your fourth year, you will be required to publish good quality papers, because that is somewhere down the line it is going to reflect your research prowess as well. And the better the quality of your research, the better the journal you should target. And at the end of the day, the quality of your research papers also talk about your academic orientation towards research as well. I mean, teaching is one thing, but somewhere down the line, you also need to somehow get good quality research papers published. That is one thing which initially people take it for granted, but over a period of time, they realize that, okay, this is one thing which is required to be done. Okay. Since quite a few people have done some sort of research, Majin, what exactly, how do we characterize the quality? I mean, quality is a very subjective word, isn't it? मेरे लिए क्वालिटी होगी 5 पेपर पब्लिश कर लेना साल भर में, लेकिन किसी के लिए क्वालिटी शायद एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना हो Sir, सकती है. I think कि paper publication is related how
in which journal we published without any APC. I mean कि जैसे कि if we go for without any APC charges like OpenSS, and if we'll go for the good publication house like Sage, Elsevier, Springer. So in these types of publication house, it is quite difficult to publish your paper even in Scopus. If we raise our standard Okay. like ABDC category, so the right now the researchers are focusing on the A category, B category publication, and it is quite difficult. And a good paper approximately takes 1.5 year for the publication process. It is easy to write a paper, but it is quite difficult to match up the scope with the journal's scope and aim and publish with the respective journal. Okay. Anyone else? Suprabha, Mukta. एक अच्छे क्वालिटी रिसर्च पेपर की जैसे माधवेंद्र ने बात की कि इट विल टेक अराउंड 1 ईयर, कुछ एपीसी नहीं लेते. ओके, क्योंकि रिसर्च इतना ब्रॉड डोमेन है एंड कहीं ना कहीं सबका पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है रिसर्च को लेके, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये भी समझना ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली शुड वी लुक. एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन विल बी इन अ पोजीशन टू राइट अ पेपर. क्वालिटी पेपर तो सब लिख लेंगे बाय द टाइम यू डेवलप सम रीडिंग हैबिट ऑफ योर लिटरेचर एंड जो रिसर्च जो अभी चल रही है. तो कॉम्बिनेशन ऑफ योर रिसर्च acumen combined with the literature review will help you to identify which area you are going to select for your PhD, number one. एंड सेकेंडली जब PhD का टॉपिक थोड़ा सा ब्रॉड एंड पे सेलेक्ट हो जाता है कि अच्छा इसी एरिया में ही मुझे PhD करना है, तो उसी एरिया पे आप रिसर्च करना शुरू करते हो. By the time you complete your 6 months, say 1 year, say 2 years, you will be able to write something, and that something will assume some shape, and that shape actually takes the form of a research paper. Okay, अब जब रिसर्च पेपर बन गया तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ पब्लिश होना चाहिए. जैसे किसी ने बताया कि नहीं इसको स्कोपस में ही आना है, एबीडीसी. हैव एवरीवन हर्ड द नेम कि यूजीसी लिस्टेड क्या होता है, यूजीसी केयर क्या होता है, स्कोपस क्या होता है, एबीडीसी क्या होता है? Yes, sir. माधवेंद्र को छोड़ के, और ईशा, ऐश्वर्या, किसी ने नहीं? नो सर. ओके, सी मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ. सबसे पहला काम ये होता है कि पेपर लिख लिया. पेपर लिखने के बाद हमारे लिए कंपल्शन ये होता है कि हम कम से कम 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे, उसी डोमेन में करेंगे जिस डोमेन में मैंने पीएचडी का टॉपिक सेलेक्ट किया है. ये बात क्लियर है सबको? यस. हाँ Yes, या sir. ना? Yes, चैट sir. में जरूर से टाइप Yes, करो. sir. सी ऑल नीड टू बी अलर्ट, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली इंटरैक्टिव. ठीक है, अब मुझे 2 पेपर लिखने हैं. तो जैसे मैंने अपने पीएचडी जब की थी तो इट वाज ओनली पीयर रिव्यूड. पीयर रिव्यूड होता है क्या, बताता हूँ. ठीक है, तो पहले पीयर रिव्यूड जर्नल्स थे, तो धीरे धीरे कल्ट बदलता है ना. तो जब कल्ट बदलता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपका रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है. तो पीयर रिव्यूड से अब स्कॉलर्स के लिए रिक्वायरमेंट हो जाती है कि वो यूजीसी केयर में पब्लिश करें. ठीक है, यूजीसी केयर इज ऑथेंटिफाइड बाय यूजीसी. ठीक है, और यूजीसी केयर ने भी कैटेगराइज कर रखा है, एक ए है और एक है बी कैटेगरी के जर्नल्स हैं. उसमें भी मैक्सिमम जो जर्नल्स हैं वो आपके स्कोपस के ही हैं, वेब ऑफ साइंस के हैं. ठीक, हम तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझ लें कि इतनी जरूरत होती है. अगर हम एक कदम और आगे जाते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है कि नहीं उससे भी ऊपर है तो स्कोपस में जाना चाहिए. स्कोपस क्या है? स्कोपस आपका बेसिकली डेटाबेस है. ठीक है, उस डेटाबेस में बहुत सारे जर्नल्स हैं. ठीक है, तो उस डेटाबेस में आपको किसी एक जर्नल में आपका पेपर जो है वो इंडेक्स हो जाना चाहिए, पब्लिश हो जाना चाहिए. से सपोज जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा पेपर यूजीसी केयर में छप जाना चाहिए, तो यूजीसी केयर में बहुत सारे जर्नल्स हैं. उन जर्नल में से कोई एक जर्नल मैनेजमेंट के फील्ड का होगा और उनमें मेरा पेपर क्या हो जाना चाहिए, पब्लिश होके इंडेक्स हो जाना चाहिए. दैट इज इट. बस इतना रिक्वायरमेंट है. अब बात यह है कि रिक्वायरमेंट तो ठीक है, लेकिन क्योंकि इतने सारे जर्नल्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन में कि इतने सारे जर्नल्स हैं और हर जर्नल की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है. हर जर्नल की रिक्वायरमेंट अलग है, टाइम टू रिव्यू अलग है, सबके चार्जेस अलग हैं, कुछ नॉन चार्जेस वाले भी हैं. तो कंफ्यूजन बहुत हो जाता है. ठीक है,
एंड बीइंग इनटू इंडिया वी आल्सो हैव एन इशू कि यहाँ पे जर्नल के क्लोन बहुत जल्दी बन जाते हैं। से मान लो मैंने छपवाया है से सेमांटिक स्कॉलर करके कोई है, ठीक है, तो सेमांटिक स्कॉलर एक जर्नल का नाम है, तो ऑटोमेटिकली सेमांटिक स्कॉलर की वेबसाइट 3 या 4 अलग अलग सटल चेंजेस के साथ वेबसाइट बनी हुई होगी। मुझे लगेगा कि चारों वेबसाइट क्या हैं, सही हैं, बट एक्चुअल में एक ही वेबसाइट होगी जो आपकी ऑथेंटिक होगी, बाकी 3 वेबसाइट किस कैटेगरी में आ जाती है, वेबसाइट में, ठीक है। तो हमें ये भी आना चाहिए कि हम जब अपना पेपर पब्लिश करने के लिए सबमिट कर रहे हो तो उस सबमिशन से पहले हम क्या करें, हम ये देख लें कि जो जर्नल में मेरा पेपर जा रहा है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब बात आती है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से तो स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड द आइडिया इज वंस योर कोर्स वर्क इज डन you should begin to think as to what is the domain where you are thinking of writing and you should start writing। क्यों? क्योंकि when you start writing आपको धीरे 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 लिखते लिखते समझ में आएगा कि maybe this is the area where you can write and where you can excel। and जब आपको ये पता चल जाएगा कि this is a phrase और this is the area जहाँ पे आपका ज़्यादा competency है, वहाँ पे ही आप ज़्यादा अच्छे पेपर्स लिख पाओगे। Just to quote an example from my PhD tenure was that I was also asked to read a lot of research papers during the first 3 to 6 months, and I used to think it is very difficult to read a lot of research papers। इतना research paper अगर मैं पढ़ते रहूँगा तो मैं PhD कब करूँगा? But the idea is when you will start reading research papers तो धीरे धीरे आपको उस particular domain का ज़्यादा knowledge आएगा, you will be able to identify the research gap। रिसर्च गैप आता कब है दिमाग में? उसी समय आता है जब आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स उस पर्टिकुलर एरिया में पढ़ चुके होंगे। पता चलेगा कि ओके सो एंड सो हैज रिटन दिस एरिया फॉर सो एंड सो पर्टिकुलर रिसर्च कंट्रीब्यूशन। अगेन एक रिसर्च कंट्रीब्यूशन किसी एक ऑथर की पता चलेगी। जब आपके पास n नंबर ऑफ रिसर्च रीडिंग्स होंगी यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये पॉइंट इस पर्टिकुलर ऑथर ने कवर नहीं किया है और इस एरिया में अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं की है। माई एरिया वॉज से फाइनेंशियल लिटरेसी, ओके, तो फाइनेंशियल लिटरेसी वॉज डन इन अब्रॉड ऑन अ लार्जर स्केल। इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी हुई थी लेकिन यूपी के लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं हुई थी। जब मैंने रिसर्च पेपर्स ढूंढने की कोशिश की तो यूपी के लेवल पे रिसर्च पेपर्स बहुत कम थे। सो दैट बिकेम माई टॉपिक कि ओके मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे ही वर्क करूंगा, बट वो फाइनेंशियल लिटरेसी कहाँ पे होगी? यूपी में होगी। सो आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ से आएगी? आपकी ओरिजिनलिटी है कि आपने वो ऐसा टॉपिक उठाया है जो कि आपके एरिया में बिल्कुल ही नोबल लेवल पर है। सो ये बात सबको समझ में आ गई? कैसे स्टार्ट करना है? स्टार्ट हमें यही करना होगा कि हमें सबसे पहले तो जितना भी लिटरेचर है उसको पढ़ना पड़ेगा, और अगर हम लिटरेचर पढ़ लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली समझ ज़्यादा आएगी। whatever you will be reading through and through for first 3 to 6 months you will be able to understand and encapsulate all what you have read, and उसका जो सार है उसी से पता चल जाएगा कि आपका रिसर्च गैप। बिलीव मी वंस यू विल गेट एन आइडिया कि आपका रिसर्च गैप क्या है, हो सकता है उसको निकालने में 3 महीने लगे या 6 महीने लग जाए, लेकिन जिस दिन रिसर्च गैप आपको पता चल जाएगा उस दिन यू विल बी थिंकिंग कि मे बी आपके PhD का आधा काम हो गया है। क्योंकि इट इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट रिसर्च गैप और किसी को नहीं पता हो लेकिन रिसर्च स्कॉलर को पता हो, और रिसर्च स्कॉलर को अगर ये पता है कि PhD में यही मेरा रिसर्च गैप है और इसी को ही मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूँ, मे बी वो जो है उस पोजीशन में कि वो अपने PhD को बहुत आराम से डिफेंड कर लेगा। अगर आपको रिसर्च गैप नहीं पता है और आपने कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठाया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लोकल लेवल पे शिफ्ट कर दिया कि मे बी कोई भी स्टडी का हम प्रोटोटाइप उठा लिए और हमने लोकल लेवल पे उसको जनरेट कर दिया, तो शायद रिसर्च गैप बहुत अच्छे से जस्टिफाई नहीं होगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज टू गो थ्रू literature review of whatever domain, maybe someone is interested in marketing, someone is interested in HR, someone is in operations, कोई IT में करना चाहता है, कोई cryptocurrency में करना चाहिए, the sky is the limit, yet reading of literature review is of paramount importance। बात आती है कि हमें रिसर्च पेपर्स कहाँ से पढ़ने चाहिए, तो कहाँ से पढ़ने चाहिए? Let me see what you can type in your chat boxes. Sir, right now I'm using the SCI Hub.
SCI हब से कर रहे हो, ठीक है। नहीं, SCI हब इज नॉट द सोर्स। हाँ, मैं अनएथिकल है सोर्स सर, पूछ आई रहा नो। हूँ। नहीं नहीं नहीं, अनएथिकल एथिकल की बात ही नहीं है हमारे। मैं सोर्स पूछ रहा हूँ कि कहाँ से। अदरवाइज इज आई इट गो टू द एमरल्ड है? विभा गूगल। हैज रिटन गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर वेरी है, गुड रिसर्च दिव्या। रिसर्च गूगल गेट है। स्कॉलर। शिखा ने भी गूगल स्कॉलर लिखा है। एप्सको ऐश्वर्या, वेरी गुड। गूगल स्कॉलर, ठीक है। What else? I need everyone to participate. Come on, और मुझे कुछ पता चले. See, it is going to be very interesting. काफी interesting topic है, and I wish I could have attended a session way years back. शायद ज़्यादा आराम से समझ में आता. तन्वी ने लिखा है गूगल स्कॉलर, दिव्या ने लिखा है रिसर्च गेट. ओके, ग्रेट। और लोग तो मुझे 12-13 लोग दिख ही रहे हैं। विभा ने लिखा है academia.edu से, ओके। शोध गंगा से दिव्या, ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर हम बेसिक लेवल पे स्टार्ट करें तो गूगल स्कॉलर अपने में ही एक अच्छा रिपोजिटरी है, ठीक है। क्योंकि गूगल स्कॉलर पे आपको ओपन एक्सेस मिल जाते हैं वो सारे जर्नल्स के, जो कि आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शन पे, ठीक है, समझ में आ जाता है कि ओके दिस इज अ गुड इनफ पेपर टू गिव यू बेसिक idea of what the domain is all about. You can go through Google Scholar. Then one step forward, you can have an account on ResearchGate, which I will actually want that everyone should have an account on ResearchGate. ResearchGate में फ़ायदा क्या होता है? ResearchGate में आपको peer review मिल जाता है, ठीक है। तो maybe you are interested in say marketing, maybe you are interested in some specific structure of say consumer behavior. What can happen is रिसर्च गेट पे आप जैसे ही सब स्पेसिफिक थीम पे चले जाओगे कंज्यूमर बिहेवियर, तो आपको बहुत सारे पेपर्स कंज्यूमर बिहेवियर के फिल्टर पे मिल जाएंगे। ये फिल्टर गूगल स्कॉलर पे भी अवेलेबल है, बट जो इंडेक्सिंग रिसर्च गेट पर है वो बहुत अच्छी है। तो समवेयर you can easily have an access to better papers. There are authors available on ResearchGate. You can even ask them to share their paper and happily they will be sharing. काफ़ी अच्छे authors उन पर हैं, और आप उन ऑथर्स के अगर आपको शायद एक्सेस नहीं मिले तो आप उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो, दे विल बी सेंडिंग यू द पेपर्स आल्सो, बट दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू क्लियर दी स्टेजेस। स्टार्ट विद गूगल स्कॉलर, गेट ऑन टू रिसर्च गेट, देन रिसर्च गेट भी हो गया, फिर कहाँ जाना चाहिए हमें? क्योंकि देखो, आप जब लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि गूगल स्कॉलर पे ही खत्म हो जाएगा और रिसर्च गेट पे, बट यू विल हैव टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड। व्हाई? उसके पीछे का लॉजिक क्या बताता हूँ। when you are writing papers for Elsevier, which is Scopus, ठीक है, या ABDC, या से SCI, इनका रिक्वायरमेंट क्या होता है? इनका रिक्वायरमेंट होता है कि जब आप रेफरेंसेस लिख रहे हो, ठीक है, जब आप रेफरेंसेस लिख रहे हो तो उनके पेपर के जर्नल्स के ऑथर्स को आप साइट करो, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर, साइटेशन करने हो ताकि उस जर्नल का साइटेशन साइटेशन, इम्प्रूव उस हो इम्पैक्ट जर्नल फैक्टर के पे। साइटेशन का बेसिक गेम होता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गेट योर पेपर पब्लिश इन से स्कोपस और मे बी इन एबीडीसी, यू हैव टू आल्सो कोट गुड क्वालिटी पेपर्स फ्रॉम द सेम डोमेन आल्सो। अब अगर हम मुझे स्कोपस में लिखना है तो मैं शायद गूगल स्कॉलर के नॉर्मल पेपर्स को कोट करूंगा तो वो आपके पेपर्स को वेट नहीं देता। इट डजंट गिव यू दैट लेवल ऑफ वेटेज और इम्पोर्टेंस। सो द फर्स्ट थिंग इज you need to get an access to Scopus papers also and ABDC papers also, अच्छे जर्नल्स में। अब बात आती है कि Scopus और ABDC के पेपर्स पे कैसे एक्सेस मिलेगा। तो Scopus और ABDC के पेपर्स का एक्सेस ऐसे तो नहीं मिलता, लेकिन आप कहीं कहीं पे ओपन एक्सेस भी मिल जाता है, तो उनके थ्रू भी यू कैन बिगिन योर जर्नी फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल टू रीच वेयर यू वांट टू एक्चुअली। एंड द जर्नी इज गोइंग टू बी लॉन्ग वन, एंड कभी कभी काफ़ी हेजी रहता है थिंकिंग कि अरे अभी तो मैं पहला पेपर पढ़ रहा हूँ, मुझे 100 पढ़ने हैं। एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस आपके पीएचडी थीसिस में करीबन 200 से 250 हो जाते हैं, विच एक्चुअली to justify it means that you have to read around 200 research papers. How will you read? That is one thing, but somehow you will have to do it to get a better understanding अगर आप रिसर्च पेपर लिखने की कोशिश कर रहे हो तो, ठीक है। अब एक बात जैसे माधवेन ने कही थी कि जर्नल वही अच्छा होता है
जिसमें APC नहीं लगा होता है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं होते हैं। कुछ जर्नल क्या होते हैं ना जो प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं, वो बोलते हैं कि ओके यू विल पे अस 5,000 फॉर द सबमिशन एंड ओनली देन विल बी इन अ पोजीशन टू पब्लिश योर पेपर। ओके, should I know is it a good practice or not? Let me hear your comments first. कितने लोग का मानना है कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि जर्नल 5,000 मांग रहे, यू पे 5,000 एंड इट विल पब्लिश योर पेपर, isn't it? कितना आसान हो जाएगा रिसर्च पेपर पब्लिश करना। ऐश्वर्य says no. Who else? विभा, प्रगति, सब नहीं बोला है। ओके, तन्वी is saying no. And what if I say कि जर्नल ने ये बोल दिया है कि आपका पेपर का जो चार्ज है वो इसका है नहीं क्योंकि वो ओपन एक्सेस है, तो क्या बोलेंगे? अगर वो ओपन एक्सेस होता है इसका मतलब है कि आपने पेपर लिखा, सर ये डिपेंड करता वो है, एक्सेसिबल है सबको। सर ये डिपेंड करता है कि पब्लिकेशन हाउस कैसा है, ये इस बात राइट, पे डिपेंड वो करता है कि वहां जैसे पे कि पहुंच रहे हैं एल्सेवियर हम में, लोग। स्प्रिंगर में या सी, बोलते हैं ना कि देर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट, तो यहाँ पे भी एक स्कूल ऑफ थॉट है विच सेज कि नहीं, यू शुड ऑलवेज पब्लिश इन अ पेपर जहाँ पे आपको ओपन एक्सेस नहीं देना हो, ठीक है। बट अब जो है ट्रेंड साइटेशन का भी इम्पोर्टेंट हो गया है। रिसर्चर्स प्रोएस, रिसर्चर्स अकाउंटेबिलिटी और मे बी हिज जीनियस इज एक्चुअली सीन बाय द साइटेशंस ही गेट्स, ठीक है। एच इंडेक्स है कि नहीं है, ठीक है, वो क्या नंबर आ रहा है एच इंडेक्स पे, तो वो कैसे पता चलेगा? वो तो पता उसी समय होगा जब उसके ओपन एक्सेस में छपेंगे। अगर वो ओपन एक्सेस में नहीं छापता है तो फेयर इनफ शायद ही, मुश्किल ही होगा कि उसको कुछ भी एक्सेस मिल पाएगा, ठीक है। और जब मिलेगा ही नहीं किसी भी ऑथर को एक्सेस, तो वो कोट कर नहीं पाएगा। तो साइटेशन तुम देखोगे कि बहुत अच्छे रिसर्चर्स का साइटेशन बहुत कम भी हो जाता है इस कारण कि दे डू नॉट पब्लिश इन दी ओपन एक्सेस जर्नल्स। ऑल ओपन एक्सेस जर्नल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज दी डूबियस वंस, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। सो भले ही एक सेट होगा कि जहाँ पे लगेगा कि हाँ सारे ओपन एक्सेस हैं, पैसे ले रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि सारे ही जर्नल खराब हैं। To quote quite a few, Elsevier and Emerald journals will charge you around $2,500. तो $2,500 वो एक पेपर को पब्लिश करने के लिए लेते हैं, ताकि आपका जो पेपर जो कि 2 साल के लिए नॉन ओपन एक्सेस में होता है उसको ओपन एक्सेस करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम ग्रीन टू गोल्ड मोड। तो $2,500 दे के आपका पेपर ओपन एक्सेस हो रहा है, ठीक है। द फैक्ट इज वो ओपन एक्सेस हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि दे विल पब्लिश ओनली व्हेन योर क्वालिटी ऑफ द पेपर इज स्टिल गुड। सो द क्वालिटी इज स्टिल द फर्स्ट फैक्टर टू बी चेक्ड and only then they will be giving you an option whether you can publish it or not. In India the case is different. Quite a few shops are there which will say ki you pay and then you publish, but then that practice needs to be stopped, and that will be stopped only when slowly but surely some journals will be delisted. तो जब हम लोग लिखने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वी शुड बी फ्रीजिंग ऑन टू व्हाट सॉर्ट ऑफ जर्नल्स वी आर राइटिंग फॉर। किसी भी जर्नल में लिखने के लिए, जर्नल समझ में आता है ना सबको क्या होता है? जर्नल मतलब कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। अगर मुझे रिसर्च पेपर किसी एक पर्टिकुलर जर्नल में लिखना होगा तो मुझे जर्नल के 3 ऐसे पॉइंट्स बताओ जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। सुप्रभा, विभा, ईशा, ऐसे 3 पॉइंट्स जर्नल के बताओ जो क्लियर हो जाएंगे कि ओके मुझे इस जर्नल में छापना चाहिए। क्या क्या देखना चाहिए जर्नल में छापने से पहले मुझे? Authorized journal. ऑथराइज जर्नल, वेरी गुड। व्हाट एल्स? It's the same thing. The journal is authorized and it is like different specialities have different journals. So whether ओके, it has a standardized number and everything. इसके अलावा चलो मान लो सब लोगों ने पेपर लिख लिया, ठीक है। मैंने एक पेपर लिख लिया फाइनेंशियल लिटरेसी पे, ठीक।
और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं एक नॉर्मल जर्नल में छापने वाला हूँ एंड द नेम ऑफ द जर्नल लेट अस सपोज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड समथिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे उसकी वेबसाइट पे जाने चाहिए। ठीक है, राइट, यही करूँगा ना मैं। सबसे पहले वेबसाइट पे जाऊँगा, फिर वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे सबसे पहले उसका कौन सा सेक्शन देखना चाहिए। See, these are the Sir, important about the points. journal, about the About the journal, journal, excellent. then About the journal में contact सबसे us, पहले जाना चाहिए। contact, कॉन्टैक्ट, ओके। हमें सबसे पहले अबाउट द जर्नल में जाना चाहिए क्योंकि वी विल गेट एन आइडिया ऑफ एम्स एंड स्कोप ऑफ द जर्नल। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मे बी वी आर राइटिंग ऑन से फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है, और जर्नल का नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो हम जर्नल क्या है फाइनेंशियल रिस्क में, हम पेज कौन सा पेपर में है फाइनेंशियल लिटरेसी में। सो नीडलेस टू से दैट पेपर विल नॉट बी accepted. So the first factor should be to go through the journal to see if it is authentic. Authentic हमें कुछ factors को देखने से पता चल जाता है। Secondly हमें देख लेना चाहिए कि aims and scope क्या है। aims and scope में कैसे पता चलेगा, aims and scope में पता चल जाएगा कि okay these are the things जहाँ मुझे पता चल जाएगा कि क्या मेरे डोमेन से, क्या मेरे रिसर्च पेपर का जो टाइटल है और क्या जर्नल का जो वो है बेसिक एम और स्कोप है उससे मैच करता है कि नहीं करता है। थर्ड, तन्वी ने लिखा है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर में आते हैं तन्वी अभी। एक फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अलावा। मान लो तुमने पेपर लिख दिया, नो यू आर वेटिंग कि रिव्यूअर जो होगा वहाँ पे, एडिटर जो होगा वो आपको रिव्यू भेजेगा। से सपोज वो 3 महीने के लिए रिव्यू ही नहीं देता है, वुडंट इट बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू नो कि कितना समय लग रहा है रिव्यू आने में। ठीक है, तो टेक्निकली उसको एक कंसेप्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइम फॉर फर्स्ट रिव्यू। ठीक है, क्या बोलते हैं, टाइम फॉर फर्स्ट रिव्यू। जब आपने पेपर भेजा है एडिटर को, एडिटर ने उसको पढ़ा है और उसको मैच किया किससे, एम्स एंड स्कोप से। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग डेस्क रिसर्च भी बोलते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर ऑल टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, you should and must understand all these words for a reason that once you will be getting into the publication mode, which I think you should start from, बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, तो you should begin from whenever you think it is right, because greater the time you have for publication, the better are the chances of publishing in an E-quality paper. डेस्क रिसर्च एडिटर के पास आता है, एडिटर पहले ही देखता है कि क्या आपका पेपर का फॉर्मेट, क्या पेपर की क्वालिटी, क्या पेपर का रिसर्च कंट्रीब्यूशन फर्स्ट टाइम में ही कुछ मैच कर रहा है। अगर वो मैच करता होगा देन ही विल फॉरवर्ड इट टू अ रिव्यूअर, राइट। तो फर्स्ट टाइम टू रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर अ रीजन दैट मे बी यू आर नॉट रेडी। okay, maybe I am not ready for any other journal, maybe जो जर्नल है उसको बहुत अच्छा नहीं लगा मेरा पेपर, वो क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। he might be rejecting the paper then and there। कम से कम हमें पहले ही पता चल जाएगा तो हम प्रॉम्प्टली कहीं पे और भेज सकते हैं जहां उसके एम्स एंड स्कोप से मैच हो पाए, राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो मे बी हमारा समय जो है किसी एक पर्टिकुलर जर्नल से एक्सपेक्टेशन में ही क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा। सो द टारगेट शुड बी टू सेलेक्ट अ जर्नल विच हैज अ फास्टर टाइम टू रिव्यू। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या Yes, देखे, sir. पहले ऑथेंटिसिटी देखे, फिर हमने देखा कि whether it is matching your aims and scope, then faster time to review, क्योंकि जितनी जल्दी रिव्यू होगा उतना अच्छा होगा आपके पब्लिकेशन के लिए। जैसे माधवेन ने शुरू में बताया था कि it takes almost like 1.5 year। माधवेन, there are a few journals which might take 1.5 year, but then there are equally good journals which will not take more than 45 days to publish। I'll show you the technique how to get published, but ये बहुत आराम से 3 months से ज़्यादा कहीं अच्छे जर्नल में नहीं लगता है। ठीक है, the only target is to filter your selections using a few parameters। ठीक है, एक्सेप्टेंस रेट एक अलग फैक्टर हो जाता है। क्यों, एक्सेप्टेंस रेट क्या बताता है, एक्सेप्टेंस रेट बताता है कि कितने डॉक्यूमेंट्स उस जर्नल ने रिसीव किए एंड उन जर्नल्स में से कितने एक्सेप्टेंस हैं।
एक जर्नल ऑन एन एवरेज से 300 डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है या 300 आर्टिकल पेपर्स रिसीव करता है। उस 300 आर्टिकल पेपर में हो सकता है कि वो सिर्फ 30 आर्टिकल्स ही सिलेक्ट करे, एक्सेप्टेंस दे। तो 30 आर्टिकल्स अपॉन 300 इज 10%। तो एक्सेप्टेंस रेट कितना हो गया? 10%। Will it be judicious to send a paper in a journal जिसका acceptance rate सिर्फ 10% हो या 5% हो, rather than why not send a paper जहाँ पे acceptance rate 35-40% हो? So आपकी probability क्या होगी? आपकी probability automatically double हो जाती है publish करने की। तो ये बहुत ज़रूरी होगा। ये बात क्लियर है? सबको क्लियर है? यस सर। तो अब हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ने देखा ऑथेंटिक है कि नहीं वेबसाइट, हमने एम्स एंड स्कोप देखा, हमने थर्ड देखा कि आखिर कितना टाइम रिव्यू लेने में लगा रहा है, फिर हमने ये भी देख लिया कि एट द एंड ऑफ द डे हमें कितना लगाना है, कि एग्जैक्टली क्या हमें चैलेंज आ सकता है। किसी ने बताया था इम्पैक्ट फैक्टर इज ऑल्सो वन कंसिडरेशन। जस्ट अ मिनट, आई वॉन्ट सम पर्सन टू विजिट। एक मिनट। ओके, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? किसी ने मेरे से पूछा था उस समय, किसी ने बताया था, तन्वी ने बताया था। व्हाट इज एन इम्पैक्ट फैक्टर? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. हाँ, इम्पैक्ट फैक्टर शोज द जनरल वैल्यू। नहीं, होता क्या है, आई अंडरस्टैंड इट शोज द जनरल वैल्यू। अगर मुझे किसी को समझाना होगी इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, सी इम्पैक्ट फैक्टर मैं बताता हूँ। इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली, हाँ तन्वी। सर वेटेज ऑफ Your voice is not clear. Okay, okay, I'll explain. See, impact factor basically आपके जर्नल का होता है, और जर्नल में ऑन एन एवरेज कितना साइटेशन हो रहा है हर साल। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइटेशंस ऑन एन एवरेज इज एन इंडिकेटर ऑफ व्हाट इज योर इम्पैक्ट फैक्टर। ठीक, अगर किसी जर्नल का लगातार 1 साल 2 साल 3 साल इम्पैक्ट फैक्टर 0 आ रहा है, यू कैन सेफली अज्यूम कि बहुत ज़्यादा दिन तक वो बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि इम्पैक्ट फैक्टर इज वन इंडिकेटर जो कि है। फिर एक चीज़ और है कि एक मैनेजमेंट का के जर्नल्स का भी इम्पैक्ट फैक्टर होगा। अगर हम मेडिकल लाइंस के भी देखें तो इम्पैक्ट फैक्टर होते हैं जो मेडिकल जर्नल्स होते हैं, तो साइंस के भी जर्नल्स होंगे, उनके भी इम्पैक्ट फैक्टर होंगे। एक बहुत ही अच्छी बात यह है
कि मेडिकल जर्नल्स और साइंस के जर्नल्स का जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो बहुत हाई होता है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कोई बताओ। ओके, मैं ये बताता हूँ कि अगर हमें मेडिकल और साइंस का फील्ड बहुत ही डायनामिक होता है, देयर आर लॉट मोर रिसर्चर्स इन दैट फील्ड, एंड एज अ रिजल्ट होता क्या है कि उनका इम्पैक्ट फैक्टर यूजुअली थोड़ा इन्फ्लेटेड होता है। ले इसी कारण बोला जाता है कि आप जब इम्पैक्ट फैक्टर चेक कर रहे होते हैं तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज इम्पैक्ट फैक्टर की नहीं चेक करनी चाहिए। आपको हमेशा ही डोमेन वाइज ही इम्पैक्ट फैक्टर सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, इम्पैक्ट फैक्टर भी हो गया। हम लोग ने ये भी देखा कि एम्स एंड स्कोप मैच कर लिया, हमने देखा टाइम टू रिव्यू कैसे होता है। हमको इसके आगे कहीं कहीं पे कुछ जर्नल्स में बोला जाता है कि जब आप साइट कर रहे होते हो ऑथर्स को, तो आप उनकी ऑर्सिड आईडी मेंशन कर दें। ठीक है, डू वी हैव एन ऑर्सिड आईडी एवरीवन हियर, रिसर्च स्कॉलर्स? क्या हम लोग की माधवी की बनी हुई है और किसकी बनी हुई है? गूगल स्कॉलर की आईडी बनी हुई है। गूगल स्कॉलर पे सबका अकाउंट है, हाँ या ना? either it can be yes, it can be no, okay, so first things first, बेसिक काम करना शुरू कर रहे हैं। हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें गूगल स्कॉलर पे आई एम टाइपिंग एवरीथिंग, जो जो चीज़ों पे सबके अकाउंट होने चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन अकाउंट, वाई? बिकॉज इट विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ शफलिंग। आपको शफल करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही जगह से सब पता चल जाएगा। सबसे पहले है गूगल स्कॉलर, इन सब पे सब लोग अकाउंट बना लेंगे, साइन अप कर लें अपने नॉर्मल आईडी से। ठीक है, ताकि आपका कोई भी पेपर पब्लिश होगा तो वही ईमेल आईडी आप अपने पेपर्स में भी कोट करोगे, और आपका साइटेशन जो भी है या आप अपना नाम टाइप करोगे तो आपके नाम के अगेंस्ट जो भी पेपर है वो दिखेंगे। ठीक है, इट बिकम्स अ वन स्टॉप शॉप ऑफ ऑल योर रिसर्च पेपर्स। सेकेंड इज रिसर्च गेट। इसे बनाने से ये है कि आपके पास एक्सेस अच्छे पेपर्स के मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी बना लें, ज़रूर से बना लें। गूगल स्कॉलर रिसर्च गेट ज़रूर से बन जाना चाहिए, एंड डू नॉट वेट फॉर अनदर 3 months टू मेक योर आईडीज। मेक योर आईडीज ASAP, और कहीं पे लिख लेना, 5 साल के बाद शायद याद ना रहे। ठीक है, आई होप डिस्टर्बेंस इज लेस। ठीक है, थर्ड, यूजीसी केयर पे बना लें। क्यों यूजीसी केयर पे? क्योंकि यूजीसी केयर पे कंटिन्यूसली अपडेट होते रहता है, कौन से जर्नल बाहर हो गए, कौन से जर्नल नए ऐड हुए हैं, उनका आपको मेलर आते रहेगा इन द फॉर्म ऑफ द न्यूज़लेटर्स आल्सो। You should be abreast with all what is happening in research, and that will be only possible if you receive mails from them. That also gives you an idea of what is happening in India with reference to research. If you don't do it right now, it will be very difficult to catch up the pace 3 years later. Better you take the pace right now. So गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, यूजीसी केयर, ये तीन, इसका रिसर्च गेट, यूजीसी के, गूगल स्कॉलर में आपको पेपर्स भी मिलते जाएंगे, आपका एक्सेस बनते जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग ऑल्सो दिस प्रोसेस। फोर्थ जो और इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है स्कोपस। स्कोपस मे बी 2 years लेटर, हम लोग के लिए तो इट इज करेंटली, we can say that it is one thing which is important, and Scopus is जहाँ पे आपको होना ही होना है। Scopus में अकाउंट बनाइए, स्टार्ट सर्चिंग की कैसे कैसे पेपर्स सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एंड आई विल शो यू कि एग्जैक्टली वहाँ पे भी पेपर्स को हम लोग कैसे फिल्टर करते हैं, मे बी सम टाइम लेटर once a research is taken care of. So you should have an ID on Google Scholar, ResearchGate, UGC Care, and Scopus. These are the data बेसेस। ये सब डेटाबेसेस हैं जहाँ पे आपको क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि कौन सा जर्नल जो है आपका है। ठीक है, गूगल स्कॉलर कहीं ना कहीं डेटाबेस, स्कोपस भी डेटाबेस की तरह काम करते हैं। रिसर्च गेट और यूजीसी के कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं विद रेफरेंस टू रिसर्च। देन वी हैव ऑर्सिड आईडी।
ये सबकी बननी चाहिए। एवरी रिसर्चर शुड हैव अ यूनिक ऑर्चिड आईडी। ठीक है, फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि आप जितना भी अपना काम करते जाओगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऑर्चिड आईडी पे अपडेट करते जाओगे, तो इट बिकम्स एन इंडिकेटर इंटरनेशनली कि यही है आपका, इट इज लाइक यूनिक आईडी। ठीक है, जब आप पब्लिश कर रहे होते हो पेपर तो आपसे ऑर्चिड आईडी मांगी भी जाती है। मैक्सिमम गुड जर्नल्स ऑलवेज ट्राई टू सी व्हाट इज योर रिसर्च हिस्ट्री, and your research history is available on ORCID ID. They will not go by Google Scholar, they will not go by any other platforms, they will only go via ORCID ID, because ORCID ID is a filtered way of checking out what your research dimension is. Please understand, first step first ORCID ID बनाना है। और ये आई एम होपिंग दैट एवरीवन इज राइटिंग डाउन। सब लोग लिख रहे हो और कि सब दिमाग में फीड हो रहा है? प्लीज सब लोग लिख भी लो, और मेक श्योर इफ यू हैव फ्री टाइम यूज योर टाइम, मेक योर आईडीज, राइट डाउन इन अ नोटबुक कि ये आईडी का यही पासवर्ड है, सो दैट यू हैव एन एक्सेस टू इट ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। तो यूजर आईडी भी वैसे ही बनाना है जिसको तुम लोग आगे यूज कर पाओ। ठीक है, शुड बी अ फॉर्मल यूजर आईडीज एंड आगे बहुत एंड बेसिकली सारे आईडीज जितने भी ये यूजर नेम बनेंगे वो आपको साइन अप मांगते हैं आपके एक फॉर्मल आईडी से, ईमेल आईडी से। तो फॉर्मल ईमेल आईडी बनाने का मतलब है कि आप ईमेल आईडी भी फ्रेश बना लो तो नथिंग लाइक इट, और अगर पुरानी से ही बनाना है तो पुरानी चेक कर लेना कि कैसे काम करना है। सो दीज आर फर्स्ट 5 बेसिक फंडामेंटल थिंग्स जो आपको बनाना ही बनाना है जब आप पेपर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, देन बेसिक फैक्ट्स की आपको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, आपको वेबसाइट देखनी चाहिए, वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं है, एम्स एंड स्कोप देखना चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर देखना चाहिए। ठीक है, बहुत बार देखा होगा कि नॉर्मल यूजीसी की वेबसाइट्स पे, यूजीसी जर्नल्स पे देखा होगा इंडेक्स कॉपरनिकस वैल्यू, आईसी वैल्यू लिखा होगा, कहीं पे स्कोप लिखा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दीज आर नॉट द फैक्टर्स टू bank upon. These are not even indicators. Indicators for judging the quality of a journal are very different. These include like factors like impact factor, Simago factor, site score. ये सारे factors हैं जो कि मैं cover करूँगा आगे की classes में. So those are the factors which are important. ना कि ये फैक्टर्स जो कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि इंडेक्स फैक्टर में हम मेंशन कर लेते हैं, इंडेक्स कॉपरनिकस वैल्यू मेंशन होती है, दिस आर नॉट इम्पोर्टेंट। एक और इंडेक्स काफ़ी फेमस है जो कि स्कोपस के साथ लोग कंफ्यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ESCI, जो कि एक्सपैंडेड डेटाबेस है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आपको कहीं से कोई मैसेज भी आता है कि so and so is a journal which is going to publish in an ESCI database, don't go for it. Right now, don't go for it. Maybe it will be a good journal, but do not go for it for a reason कि ESCI and Scopus are not the same, ESCI and SCI are not the same. एंड जब वेटेज की बात आती है तो या तो आपके लिए पीयर रिव्यू ही काम में आ जाएगा, और अगर पीयर रिव्यू नहीं काम में आता तो यूजीसी केयर से ऊपर अगर हम जाएंगे तो स्कोपस एबीडीसी सब है, एंड स्कोपस के मैक्सिमम जर्नल्स आपके ऑलरेडी यूजीसी केयर में लिस्टेड हैं। सो यूजीसी केयर इज वन स्टॉप शॉप where you can actually filter your journals. Do not even look at any other journal. सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम जब जर्नल ढूंढ रहे हैं तो हमें पोर्टल सही में आना चाहिए। अगर हमने पोर्टल ही गलत ढूंढ लिया और हम क्लोन जर्नल में चले गए तो दिक्कत होगी। प्लस क्लोन जर्नल में अगर हम देखेंगे तो क्लोन जर्नल आपसे पैसे भी लेगा, आपका पेपर बहुत जल्दी पब्लिश करेगा, वो डोमेन का भी नहीं होगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स रिसेंटली पब्लिश्ड द पेपर इन अकाउंट्स एंड हिज पेपर वाज पब्लिश्ड इन एक जर्नल है एसेंशियल ऑयल्स करके। तो जस्ट इमेजिन कि फार्माकोलॉजी का सब्जेक्ट है, डोमेन है, और उसमें कौन सा पेपर छपा है, तो अकाउंट्स का पेपर छपा है। नो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि वो पेपर, फॉरगेट द पेपर, वो जर्नल भी कब बंद हो जाएगा और वो पेपर भी इंडेक्स होता हुआ दिख नहीं रहा है, एंड दी APC चार्जेस आर ऑल्सो वेरी हाई। तो हमें ये पता होना चाहिए कि whenever you are shelling any money, you should be very clear that this is not the way forward.
For the researcher, the way is the grind, and the grind only comes when you read enough papers first, and second thing, when you read enough good quality papers. Quality papers आपको एमरल्ड में मिल जाएंगे, जो कि मैं लिख दे रहा हूँ. एक है एमरल्ड, सेकेंड यू विल गेट इट ऑन Elsevier, थर्ड इज SCI, और एक आपका ABDC. These are the 4 बेसिक वेज या बेसिक पोर्टल जहाँ पे आपको अच्छे जर्नल मिलेंगे. ऑब्वियसली एक्सेस सबका मिलेगा नहीं, कुछ आपको ओपन एक्सेस जर्नल्स ऑलरेडी हैं इसमें, तो उनके थ्रू मिल जाएंगे, और कुछ अगर ओपन एक्सेस नहीं है तो बाकी जैसे मालवीन ने बताया था कि साई अप से ले लेना है, ठीक है, तो वो सब किया जा सकता है, बट देन दैट इज सेकेंडरी. इवन इन EBSCO डेटाबेसेस आर गुड इनफ डेटाबेस अगर उसका एक्सेस आपके पास हो, बट बिगिन विद गूगल स्कॉलर ओनली. गूगल स्कॉलर पे भी रीडिंग मोड जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है. ओके, कितने लोगों ने कितने कितने पेपर्स पढ़ रखे हैं? कैन वी बिगिन विद ईशा? कितने पेपर्स पढ़ रखे हैं अभी तक तुमने? 1 2 अगर पढ़ा है? सुप्रभा, विभा, सर ईशा ने 4 पढ़ा है. ओके, ईशा कहाँ से पढ़ाई की है? कि ये जो 4 पेपर्स पढ़े हैं कहाँ से पढ़े हैं? Go ahead, feel free. I am not going to judge anything. It's just that No, sir. I want to know so that I can understand कि No, exactly no. कहाँ पे push चाहिए. Sir, EBSCO and Google Scholar. Great. प्रगति, 1 from Google Scholar. Yes, सुप्रभा, कहाँ से पढ़ा है? सर फ्रॉम Elseviers, because Elsevier से I कौन सा do a जर्नल lot है? of healthcare patient safety पे करते हैं. I do Okay. a lot of work on healthcare and patient safety. So Elseviers Mhm. has lot of good journals on healthcare Great, excellent. and nursing, Okay. critical thinking and everything. So they have very good journals on that. Okay, and what is your interest area? So interest would be healthcare and mainly training of healthcare worker in alignment towards the patient safety. So I'm trying to correlate the two. They are already there, Hmm. but kind of prove it in another different way. Like Okay, basically the maybe skills once and you will read, competencies. maybe Yeah. once you will read around 100 pod papers, you will get more idea. अभी 4 से तो बस एक डोमेन बनता है, थोड़े और पेपर्स पढ़ने में we'll get an idea of what exactly is the research gap, especially if you are centering your study in India. True, but sir, the problem is that in India, when we talk about competency in healthcare, especially nursing and the critical thinking, बहुत ज़्यादा, because I do a lot of my work is such, तो वो बाहर में ज़्यादा है. Like there are some agencies in quality in healthcare and patient safety. अभी इंडिया में उतना refined नहीं है. Like you have your Right, agree. AHRQ, like there are a lot of agencies in quality and patient safety which are working very strongly in this arena. यहाँ Okay. पर अभी नहीं है. Great. And okay, Ashwarya has written 2 from EBSCO. What about everyone else? Pragati, Divya, Tanvi. Vibha has written 2 from Google Scholar. Okay. बाकी लोग सिर्फ 5 ही लोगों ने अभी तक रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं. ओके, आई एज्यूम जिगेशा ने लिखा है अप्रोक्सीमेटली 30 रिसर्च पेपर्स. यस जिगेशा. Sir. Jigisha, what is your area of competency? So I've done my MBA in marketing and HR, and from Okay. past 2 years, I was trying to publish in different seminars and these journals. तो उस पे सर अलग अलग टॉपिक्स पे रीड किया है. जैसे फर्स्ट पेपर वाज ऑन डिजिटल मार्केटिंग एरर, तो उसके रिगार्डिंग किया था. बट ग्रेजुअली आई वुड से कि दो आई read 30-40 papers, but knowing how to read those papers and taking 100% value out of that, वो gradually आ रहा है.
तो रीडिंग का आई डोंट नो किस तरीके से आप मतलब पूछ रहे थे उस पे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे किया था, तो उसके रिगार्डिंग आई रेड अप्रॉक्स 10 to 12 पेपर्स थॉरोली, एंड फॉर अभी जो है फॉर द टाइम बिंग आई आर हेल्पिंग माय कलीग, तो उनके लिए मैंने अभी एंटरप्रेन्योरशिप पे पेपर पढ़े हैं, तो नाउ आई नो कि मैंने रीड तो किए, बट उतना अच्छा नहीं रीड किया जितना कर सकते थे। तो आई हैव रेड 5-6 पेपर्स फ्रॉम लास्ट 2-3 days, within 2-3 days। ओके, वन बोलते हैं ना कि एक आई कैन गिव यू वन वेरी गुड एडवाइस फॉर एवरी रिसर्च स्कॉलर. I Yes, mean, sir. this I have always asked my students. What you can do is, Yes. so let us suppose that I have decided that maybe I'll be writing only, maybe I'll be reading only 15 research papers in the entire month. 15 is a good count. 15 research Yes. papers, ठीक है, Yes. Yes. or maybe even 10. Let us suppose we read 2 research papers in the entire week. Once Yes. you're reading those research papers, you need to write the synopsis of that research paper then and there. You get my point? Synopsis कितने words का होना चाहिए? Synopsis 100 words का ही होना चाहिए. You know what it will do? It will streamline your entire PhD at one go. कैसे बताता हूँ. Let us suppose total 52 weeks होते हैं एक साल में. ठीक, अगर 52 weeks हैं and we read 2 research papers in 1 week, so we'll be having 100 research papers approximately साल भर में. डिस्काउंट करते हैं, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा. लेटर सपोज 75 तो पढ़ लिए हमने. अगर वो 75 रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए और उस रिसर्च पेपर को मान लो मैंने पढ़ के उसका सिनॉप्सिस लिख दिया 100 वर्ड्स में, ठीक है, कि सो एंड सो पेपर से ये पता चलता है इस पर्टिकुलर एरिया में. यू नो व्हाट इट इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू एक्चुअली क्रिएट अ लिटरेचर रिव्यू फॉर योर पीएचडी थीसिस. ये मुझे किसी ने बताया था एंड मैंने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो भी किया. When you are reading a research paper, complete that research paper, write the essence of that research paper in 5 to 6 lines then and there. Create a word file, read the paper, उसका referencing एक जगह बना लो और उसका referencing के नीचे लिख दो कि इस research paper से मैंने ये समझा. Okay, the chapter gets closed then and there. What will happen is 1 year down the line, जब आपने फाइनेंशियल लिटरेसी या डिजिटल मार्केटिंग या हेल्थ पे जितने भी पेपर्स पढ़े हैं, रेफरेंस ऊपर मिल गया, मुझे उस पेपर से क्या मिला ये भी हो गया, क्योंकि आपने अपने वर्ड्स में लिखा तो फ्लैग ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा. एंड जब फ्लैग ऑटोमेटिकली जीरो है, आपने पढ़ रखा है, तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट राइट फ्रॉम ए टू जेड. एंड आपके पीएचडी में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती है लिटरेचर रिव्यू को कोरिलेट करने में. I am sure people would be saying कि literature review is easy, इधर से थोड़ा कॉपी किया, इधर से थोड़ा कॉपी किया, मिक्स कर लिया. वो खिचड़ी जो होती है वो बहुत दिन चलती नहीं है. Cause once you're going for your better places to interview or something, तो आपको अपनी PhD पे काफ़ी कुछ justifications देने होते हैं. And you can only give your justification when you are very confident of your PhD. That will be only when you are in a position to talk about your PhD, and that confidence only comes when you put in some effort. That effort can be streamlined. क्योंकि बोलते हैं सारी चीज़ें हैं तो मैकेनाइज्ड. You start from research and you end up to findings and conclusion till referencing. तो सबका सिस्टम बना हुआ है, सबका साइंस है. और अगर हमारे पास साइंस ऑलरेडी सारी चीज़ों का है तो हम इसको अपने इनोवेशन पे क्यों यूज़ करें? Why not also create a system for even literature review? और लिटरेचर रिव्यू का यही साइंस है कि रीड द पेपर, राइट द एसेंस, राइट द रेफरेंस देन एंड देयर. और ये एक बार करना होता है. शुरू में पहले 2 पेपर्स में डिफिकल्ट लगेगा. बाय द टाइम यू आर ऑन टू योर 5th पेपर, यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. एंड वो जब आपके पास 100-150 रिसर्च पेपर्स का आ चुका होता है ना जस्ट एक साल में, तब उससे पेपर्स जो पब्लिकेशन होते हैं बहुत जल्दी निकलते हैं, क्योंकि आपका लिटरेचर रिव्यू आपका ओरिजिनल हो जाता है. आपने लिटरेचर रिव्यू उठाया और ऑटोमेटिकली अपना डेटा एनालिसिस करके उसमें डाल दिया. सबसे डिफिकल्टी जो जर्नल्स में पब्लिश करने से में आती है वो लिटरेचर रिव्यू में आती हैं, क्योंकि दे यूजुअली आस्क दैट योर लिटरेचर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, इट शुड टेल द रिसर्च गैप. नॉर्मली पीएचडीज में रिसर्च गैप का एक अलग से सेक्शन होता है जहाँ हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च क्यों नॉवल है, व्हाट इज सो सिग्निफिकेंट अबाउट योर रिसर्च.
why is a research something that should be accepted as a PhD? But in a research paper, the game changes to an extent that your literature is no more the literature which we are quoting. It is in the form of a story starting from chronology and ends up to tell that okay, ये प्रॉब्लम आते 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 ऐसा ऐसा इन लोगों ने बताया और अभी रिसेंट ये हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये गैप है और इस गैप में मेरी रिसर्च हुई है. So it is all in the form of story. Go through some good quality papers from Elsevier and Emerald will find कि 2 पेज का ही सब लिटरेचर लिखते हैं जर्नल्स में, और वो 2 पेपर इतने स्विफ्टली लिखे हुए होते हैं, देर आर ऑल लाइक बटर. आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कहानी शुरू हुई और कहाँ पे जाके खत्म हो गई. एंड इन बिटवीन समवेयर डाउन द लाइन इज योर रिसर्च गैप. इस कारण जितना पढ़ना होगा उसको आप जरूर से रिलेट कर लो. द बेटर यू विल बी एबल टू रिलेट, द बेटर आर द चांसेस ऑफ यू राइटिंग अ वेरी गुड क्वालिटी पेपर. ऑटोमेटिकली पहले साल में जब आप पेपर लिखते हो, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड क्वालिटी पेपर. ठीक है, गिवन ड्यू डिस्काउंट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड योर मेरिट, दैट्स फाइन. हो सकता है पहले 2 पेपर आप काफ़ी अच्छे लिख दो, बट नॉर्मली रिसर्च स्कॉलर्स जब हम लोग भी थे तो काफ़ी सब स्टैंडर्ड पेपर होते थे. But over a period of time, when you start writing, that confidence you take into your kitty and you start publishing better papers. But before writing that better paper, you have to overcome your inertia also. It takes a lot of time to publish your first paper. Believe me, those who have not written and not published, it is going to be difficult to get your first paper published for a reason कि अंदर का inertia होता है कि अभी रुक के करते हैं, अभी थोड़ा और पढ़ लें, कोर्स वर्क हो जाए, कोर्स वर्क के बाद लिटरेचर रिव्यू थोड़ा कर लें और फिर एक बार सारा काम हो जाए तो फिर हम लोग लिखना शुरू करें. एंड जो वो फिर वाला वर्ड है वो लास्ट में पैनिक में आता है कि अब पब्लिश कर लेना चाहिए कि वी आर नॉट लेफ्ट विद टाइम. यू बेटर वर्क फ्रॉम टुडे, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट पब्लिशिंग एंड धीरे धीरे क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है to a level that you can easily write Scopus and ABTC without even getting a reviewer's call. उस लेवल पे लोगों को मैंने देखा है काफ़ी अच्छी रिसर्च लिखते हुए. बट देन दैट ओनली स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग अ पेपर, इवन दो इट इज़ एन एवरेज पेपर, बट लिखने से ही क्वालिटी इंप्रूव होगी, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड हाँ, जो पैरामीटर्स हैं, हम चाहें तो ऑथर के भी पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं. You should always try to find out who are the leading researchers in your area. Someone said health, तो हेल्थ में काफ़ी अच्छे लोग हैं जिनका साइटेशन बहुत होगा. आप उनके रिसर्च पेपर्स को ही फॉलो कर लो, चाहे रिसर्च गेट पे कर लो, चाहे गूगल स्कॉलर से उनका बेस निकालो, या इवन फॉलो देम ऑन देयर लिंक्डइन प्लेटफॉर्म्स. दे विल बी ऑल्सो हैविंग सम कनेक्ट ऑन लिंक्डइन ऑल्सो. तो उनके थ्रू भी उनके पेपर्स को आप पढ़ोगे, यू विल गेट एन आइडिया. ओके, सो दैट इज अ लेवल वेयर यू वांट टू रीच. स्टार्ट फ्रॉम वट एवर लेवल, बट द लेवल should be the one where you want to actually attain. Just not for your PhD side. Maybe go one step forward, because after PhD also you are thinking of research, and that research will only come when you have a research bent of mind. और वो research bent of mind develop होता है, inborn होता नहीं है. ठीक है, वो develop ही होता है something by force, something by choice, something by chance, but होना तो वैसे ही है. ठीक है, और वो होगा ऐसे ही. मे बी इनिशियली इट विल बी अ लॉट ऑफ बोर्डम, देन देयर विल बी लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, एंड व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग अ पेपर्स पब्लिश्ड काफ़ी इंटरेस्ट जगता है, बट वो टाइम लेता है. तो ऑथर लेवल पे हम लोग यूजुअली एच इंडेक्स भी देखते हैं, क्वालिटी पेपर्स भी देखते हैं कि उनका एच इंडेक्स क्या है. ठीक है, एच इंडेक्स, आई विल टेल व्हाट इज एच इंडेक्स. फिलहाल तो इतना समझ लें कि एच इंडेक्स जितना हाई होगा उतना ही अच्छा. ठीक है, और दूसरा है कि अगर हम आर्टिकल लेवल पे मेट्रिक्स पे देखते हैं तो हम यूजुअली देखते हैं कि उसका साइटेशन क्या है, नंबर ऑफ साइट्स क्या हैं. ठीक है, और थर्ड अगर हम जर्नल लेवल पे देखते हैं तो हम यूजुअली उसका इम्पैक्ट फैक्टर ही देख लेते हैं. तो दीज आर मेट्रिक्स विच आर अक्रॉस द डोमेन्स एंड अक्रॉस द सेक्शंस, बट द आइडिया इज दैट इन केस you need to publish a paper, you need to find out what exactly is to be done. ठीक है, अब बात आती है कि यूजीसी केयर में कौन सा पब्लिश करना चाहिए. ठीक है, फिर या एल्सेवियर में क्या है, एमरल्ड में क्या है, या फॉर दैट मैटर टेलर एंड फ्रांसिस भी जैसे हैं. तो ये सारे टूल्स जो हैं हमें एक अच्छा ही मेथड देने लगे हैं
they have evolved their own journal finder also. ठीक है, जर्नल फाइंडर मतलब आप एल्सेवियर पे जाओ और अपना एब्स्ट्रैक्ट उस पर अपलोड कर दो, ओनली योर एब्स्ट्रैक्ट, और कीवर्ड्स अपलोड कर दो, वो ऑटोमेटिकली आपको लिस्ट दे देगा कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आपके एब्स्ट्रैक्ट के हिसाब से कौन से ऐसे जर्नल्स हैं जिसमें आपका पेपर पब्लिश हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है वैसे ये, लेकिन कुछ हद तक वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, सो दीज आर दी जर्नल्स इन एल्सेवियर which are matching the aims and scope as per your area of interest of your research paper also. Similarly, Taylor and Francis में भी है, और यूजीसी केयर में भी हो गया है कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट अपलोड किया है तो वो बता देता है कि कौन से पेपर में आपके पेपर के कौन से जर्नल में आपके पेपर के छपने के चांसेस हैं। ठीक है, सो स्टिल बात वही है कि पहला काम तो ये है कि पेपर लिखना आना चाहिए, और पेपर लिखने आने से पहले हमें ये आना चाहिए कि हम रिसर्च पेपर्स रीड करें। तो रिसर्च पेपर पढ़ने का तो सिर्फ एक ही वे है, टेक दी पेपर, गेट योर प्रिंट डन, उसको हाईलाइट करते चलो, स्किम करते चलो, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उसको वर्ड पे टाइप करके वर्ड अपना एक फाइल बना लो जिसमें लिख दिया रेफरेंसेस, और ऑटोमेटिकली उसमें लिखते चलो। दैट इज गोइंग टू बी द जिस्ट ऑफ योर पीएचडी। एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ही होगा। और एक फाइल बना सकते हो जहाँ पे तुम जर्नल्स ढूंढते चलो और जर्नल्स लिखते चलो। काफ़ी जर्नल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिलिस्ट हो जाएंगे, काफ़ी जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर भी चेंज होंगे, बट देन दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। तो अभी तो यू शुड जस्ट स्टार्ट रीडिंग योर पेपर्स, एंड रीडिंग पेपर्स से पहले आप अकाउंट्स बनाओ, गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट, और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था गूगल स्कॉलर में बताया था, रिसर्च गेट पे बताया था, स्कोपस में बताया था, और सेड आईडी ज़रूर से बना लेना। ठीक है, क्योंकि जितने भी जर्नल्स हैं स्पेशली इंडा साइंस एंड ऑल, तो वो ऑर्सिड आईडी मांगते हैं, तो वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर इतना काम कर लिया तो ये काम आपका अभी हो जाएगा, तो बेहतर है कि आपको आगे फिर मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर लिखने के बाद पेपर सबमिशन के समय में बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि पेपर सबमिशन के भी अपने अपने चैलेंजेस हैं। एंड पेपर सबमिशन के समय आपको फ्लैग चेक कराना होगा, फ्लैग चेक के बाद आपको उसको उसके फॉर्मेट पे करना होगा। ठीक है, एंड फिर आपको ये देखना होगा कि कितना हम यूज़ कर सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ इवन फाइंडिंग आउट द फॉर्मेट। देर आर सर्टेन टूल्स जो आप जिसमें जनरल लिखो तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर वैसे ही फॉर्मेट कर देगा वो, लेकिन वो तब की बात है जब हम लोग लेवल 1 क्रॉस कर लेंगे। एंड लेवल 1 इज सिंपल, गो थ्रू द पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग द सिनॉप्सिस, तो बहुत आराम से काम होगा। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्पेशली जब पेपर पब्लिश होना शुरू होता है तो काफी इंटरेस्ट जागता है लोगों का। नथिंग लाइक गेटिंग योर रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड। once you start publishing, your confidence level starts getting upbeat about it. Yes. सर, जो हाँ जी, कुछ यूजीसी लिस्टेड जो हम लोगों की लिस्ट 1 और 2 हैं, वही सर इंटरनेशनल लेवल पे भी चलती हैं? इंडिया में तो यूजीसी लिस्ट का हुआ अब यूजीसी लिस्ट जैसा तो जिज्ञासा नहीं है, इट इज ऑलवेज यूजीसी केयर। ठीक है, जो कि ugcare.unfpune.ac.in पे काम करता है। ठीक है, एंड दैट शुड बी द ओनली वेबसाइट टू गेट योर पब्लिश्ड पेपर्स, और कोई साइट पे नहीं। एंड ऑब्वियसली यूजीसी के जो गाइडलाइंस हैं, जो आपके पीएचडी के गाइडलाइंस हैं, वही if your PhD guidelines say that you need to publish your peer review papers, so nothing like it, आप peer review में छाप सकते हो, but my idea is always be safer side, get your papers published only in UGC care journals। ठीक है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑलरेडी इनहेंस्ड रहे। ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी वन स्टेप फॉरवर्ड, especially with researchers in your first and second year, it's more time to actually write a research paper, क्योंकि थर्ड ईयर तक में आप स्टार्ट कर देते हो बाकी सारा काम करना, because you start winding up your PhD also. So the first 2 years give you more time. That is the time to explore and get your PhD publications in your next time. And what else? सर, रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल में क्या डिफरेंस होता है? देखो, रिसर्च पेपर एक्चुअली
टर्मिनोलॉजीज पे ना जाके अगर हम किसी नॉर्मल एक जर्नल के पेज पे जाते हैं तो उसमें होगा कि शॉर्ट आर्टिकल्स की एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जी और एक फुल लेंथ पेपर होता है। तो उनकी कैटेगरी रिसर्च की यही है कि अगर आप शॉर्ट आर्टिकल पब्लिश कर रहे हो जो कि 2000 वर्ड में होंगे, ठीक है, तो वो शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग रिसर्च आर्टिकल बोलते हैं। और रिसर्च पेपर जो होते हैं वो फुल लेंथ होते हैं जो कि 5000 to 7000 वर्ड्स के बेयर मिनिमम होते हैं। इसके अलावा बुक रिव्यूज़ होते हैं, आपके पीएचडी थीसिस का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसको भी आप पब्लिश करा सकते हो, ठीक है, बुक रिव्यूज़ भी पब्लिश होते हैं, ठीक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो अलग से होती हैं। इवन बिब्लियोग्राफी ऑल्सो गेट्स पब्लिश्ड। So publication can be across. For a PhD student, it is required that research papers to be published, or research article or research paper. For a researcher is almost the same thing. Short article basically आप news के लिए करते हो। जैसे एक जर्नल का नाम है Economics and Political Weekly, तो उसमें आप शॉर्ट आर्टिकल्स भेज सकते हो और वो छप जाते हैं। एक जर्नल है जैसे फाइनेंस इंडिया, वहाँ पे आपका डॉक्टोरल थीसिस हो या एमफिल की थीसिस हो वो भी पब्लिश हो जाती है, और बिब्लियोग्राफी पब्लिश हो जाती है। तो सो ये पब्लिकेशन, जर्नल में ही पब्लिश होते हैं। हाँ, ये जर्नल में ही पब्लिश होते हैं। और सर एपीआई स्कोर में इनको कंसिडर किया जाता है। एपीआई अपने में ही एक बहुत ही बोलते हैं ना कि ग्रेइश एरिया है। यू नेवर नो व्हाट गेट्स काउंटेड एंड व्हाट डजंट गेट काउंटेड, एंड माय आइडिया इज वेरी सिंपल कि rather than getting it complicated, rather than thinking API, think that you have to write a good quality research paper. Think what is controllable in your hand, you can easily control everything else. सर अगर आर्टिकल पब्लिश कर दिया है तो उसके बाद उसी टॉपिक में फर्दर पेपर डेवलप कर लें और उसे Yes. पब्लिश करें। जी हाँ, अब जगेश, आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है, मे बी आई हैव टू लीव राइट नाउ। तो एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर एंड? So we will discuss it tomorrow. Okay. In that case, what I'll do is you all come up with the questions, and maybe next class we'll discuss and we'll take on to the other parameters. I have a presentation also, and I'll share it accordingly. In that case, okay. Yes. Great talking to you. Okay. सर Bye will bye. it be okay अगर आप एडवांस में शेयर कर लें हाँ, स्लाइड्स? मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। So that Okay. would be great. Okay. Bye bye everyone. थैंक यू। Thank you, sir. Bye bye Thank everyone. you, sir. Okay. Thank you.